सो वेलकम गाइस टू टुडे स्पेस आज जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएशन थ्रू स्टॉक मार्केट. So for panelists we have joined by three such great experts, starting with Chandanji. He is a head of the derivatives and technical research at Motilal Oswal. Thank you, sir, for joining. Then we have joined by Advait, sir, who is also expert in wealth creation and compounding. Along with him, joined us by Yashraj ji, who is FNO systematic trader and great at trading at commodities. Okay, so we'll start. Let's start with Advait ji. So Advait ji, what according to you, what is Yeah, Rahul. importance of wealth creation for investor? Yes. Well, first of all, Rohan, thanks for a very, I would say, exorbitant introduction. I am a learner. I am no expert in this field. We are all learning in the market. Um, yeah, coming to wealth creation in stock markets, yes. Stock market हमको बहुत अच्छी एक opportunity देता है investing की for the long term where we can not only beat inflation but also create wealth if we have a long term horizon 5 से 10 साल का risk reward ratios as compared to other investment options stock market में थोड़ी सी risk ज्यादा है but then obviously to beat inflation stock markets would be one of the best avenues for creating long term wealth. Okay, okay, great. Uh, yeah, Chandanji, Yeah, same. thank you. Yeah, Yes, yes. please. Same Yeah. question Advait ji को पूछा वो. What, according to you, importance of wealth creation for as an investor or in the stock market? Yeah. So thank you so much, and thank you, Advait. Friends, I don't think that I need to reply that why stock market and is there any alternative which can really make the wealth. And what I believe that next 3 to 5 years or next 10 years will be for India. अगला एक दशक है वो इंडिया का ही होने वाला है. Whether you talk about the industries, whether you talk about research, whether you talk about development, whether you talk about the infrastructure. I think the equity market is going to beat any assets class. And I request each and every one, those who are listening here, at least start investing in the market. You might be a trader, you might be an investor, but I request everyone to keep on putting your investment, continue your SIP. If you know the market, if you know the technical and fundamental, you can select your own stock. If you don't know, you are not good at timing, at least start with SIP or the mutual funds. If you have to really complete your dream, vision, goal in life, then definitely the equity investment will reward you a lot in a big time. I'll just give my example. Friends, I started my SIP 10 years back, and that time I was just doing with a small amount. I'm not talking about the right now anything. I'm just telling you the power of compounding. So early you start, that is the better in the life. And power of compounding is the biggest blessing into the Indian equity market. Most of the company which are going, also growing because of their power of compounding. Their capital keeps on rising and they keep on making profit. And then how the compounding works. So if you have to really get the benefit of the power of compounding, you have to rely on the Indian equity markets, and you have to believe into the Indian equity market. I believe at least if you are looking for 5 to 10 years, 15 to 18% CAGR cannot be ruled out. So I welcome each and everyone for this session and request each and everyone to continue to be with the wealth study and wealth creation story of the India for next 1 decade. That's all from my side.
थैंक यू चंदन जी। यशराज जी। यस, या देखिए टेल यहाँ पर हम लोग, हमारा जो टॉपिक है वो वेल्थ क्रिएशन के ऊपर है, राइट। सो इन्वेस्टिंग का जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि जब भी आपको कोई इन्वेस्टिंग स्टाइल चूज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल कितना दूर है, क्या है आपका गोल, राइट। किसी का कोई बहुत शॉर्ट टर्म गोल है, किसी का मिड टर्म गोल है या किसी का लॉन्ग टर्म गोल है। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपका गोल जो है लॉन्ग टर्म होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ ही क्यों बनाना है, बिकॉज वो आंसर जो है दोनों एक्सपर्ट्स दे चुके हैं, राइट। हम देखते हैं कि हमारा जो इंडियन मार्केट का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एंड अगर हम लोग इफ़ वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स एंड डेफिनेटली वी विल मेक मनी। बट अगर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटीज के थ्रू पैसा बनाना है, नॉट बाय म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो म्यूचुअल फंड हैज अ फिनोमिनन दैट इट वोंट एक्चुअली आउट परफॉर्म द मार्केट बाय अ बिग मार्जिन, राइट। अगर 15-16% का CAGR आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी दे रहा है आपको, अगर ब्रॉडर इंडेक्स है, तो जो म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स होंगे देर बी वो क्लोज टू द जो मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं वो रहेगा, राइट। सो अगर आपको वेल्थ लिटरली क्रिएट करना है तो आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा थ्रू एक्विटीज, राइट। और एक्विटीज में वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू नीड टू नो हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर मनी यू कैन डिप्लॉय इन एक्विटीज, राइट। सो देयर इज दिस फॉर्मूला विच इज कॉल्ड रिस्क फैक्टर, जहाँ पे ब्रॉडली ये आपको फाइनेंस के बेसिक्स में आपको पता चल जाएगा। 100 minus x is the percentage of money what you can park in equities, and x being the age. So let's say if you are 40 years old, you can only invest 60% through equities, and rest of 40% you can invest in safer instruments like gold, debt, जहाँ पर वॉलेटिलिटी कम रहती है, जहाँ पर रिटर्न्स भी आपको कम मिलेंगे, बट इट विल एक्चुअली प्रोवाइड योर इन्वेस्टमेंट्स अ बिट ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो अब लेट्स से कि आपको ये चीज पता है दैट 60 और 70, लेट्स से फॉर मी आई एम 29 years old, so I can park like 70% of my money into equities, right? सो अब आपको ये चीज देखना है कि रेस्ट ऑफ 30% आपका जो भी आपको लगता है आपको गोल्ड में डालना है, डेट में डालना है, बॉन्ड्स में डालना है, इट्स अप टू यू, बट 70% आपको इक्विटीज के अंदर डालना है, दैट कैन ओनली क्रिएट वेल्थ फॉर यू। एंड अब आपको एक इन्वेस्टिंग सिस्टम जो है चूज करना पड़ेगा, बिकॉज सी आप कुछ भी रैंडम चीज करेंगे एंड इफ यू विल बी हैविंग अ मंकी माइंडसेट दैट यू आर डूइंग एनीथिंग। आज आपने इस स्टॉक में टाटा स्टील के अंदर आपको लगा कि यार टाटा स्टील में पैसा डालता हूँ, 5 रुपए बढ़ा और आपने वो पोजीशन काट दिया, लेकिन लॉस में आपने 50 रुपए उसको रखा हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस विल नॉट मेक यू एनी मनी। यू नीड टू यू नीड टू मेक इन्वेस्टिंग सिस्टम्स जो कि लॉन्ग टर्म की इस रिदम को, इस थीम को आपको रेजोनेट कर पाए, राइट। सो लॉन्ग टर्म के सिस्टम्स के अंदर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, जिनके अंदर आप उन कंपनीज में पैसा डालेंगे जहां पर आपको मार्केट की आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, लाइक मार्केट इफ 15 to 20%, जस्ट लाइक इफ वी टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस ग्रू लाइक एनीथिंग। कि वो जब इंडिया के अंदर देयर वाज अ फैशन ऑफ टेकिंग डेट, उस समय बजाज फाइनेंस जो है वो मार्केट में फर्स्ट मूवर का उसको एडवांटेज था, एंड बजाज फाइनेंस ने काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को और लोगों को दिया है, राइट। सो आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना है, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है, इन तीनों में से जिस भी आइडिया के साथ में आप रेजोनेट करें वो उसको आप फॉलो करें। डेफिनेटली जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीखेंगे, बुक्स, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, पेशेंस, जो ट्रेड्स है वो सारे के सारे जो एक विनर, एक इन्वेस्टर जो कि प्रो इन्वेस्टर होता है उसके अंदर होते हैं, वो सारे के सारे आप तभी सीख सकते हैं जब आप थ्रू आउट द इयर्स आप काम करते हैं आपके ऊपर, और सही जो तरीका होता है, जो सही प्रॉपर जो सिस्टम होता है उसके थ्रू काम करेंगे, डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर द आंसर। या चंदन जी, आपने कंपाउंडिंग के बारे में पूछा था। सो a question: how one should start compounding in stock market? या सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आप कुछ भी करें, यदि आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न कमाते हो, देन योर लॉन्ग टर्म वेल्थ कैन बी क्रिएटेड। मैं सिंपल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल बताता हूँ। यदि आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पे कंपनी की ग्रोथ मान लीजिए 15% हो रही है,
आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और 15% ग्रोथ हो रही है और आप यदि उस पैसे को वापस इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पर 15% मिल रहा है CAGR, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना पावर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और 15% रिटर्न मिलता है, आपका लगभग, आप ऐसा समझो कि रूल 72 होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, रूल 72 पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मल्टीपल को समझने के लिए। यदि मान लीजिए मैं 72 में 12 का डिवाइड करता हूँ, यदि 12% रिटर्न मुझे मिलता है और कंपाउंडिंग होता है, 72 डिवाइड बाई 12 करता हूँ, तो यानी मेरा पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। यदि मैं इस 12 की जगह 36 डिवाइड करता हूँ, तो मेरा पैसा 2 साल में डिवाइड हो जाता है। सो द रूल ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज कि आप यदि कोई एक कंसिस्टेंट रिटर्न बनाते हो, तो आपका कैसा पैसा मल्टीप्लायर होता है, राइट? सो जितनी भी ये कंपनीज बड़ी हुई है, दे आर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उनका एक्स कैपिटल था, उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैपिटल एक्स प्लस समथिंग हुआ, उस पर वापस प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इवन इफ यू आर ए ट्रेडर। काफी लोग होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा तो नहीं है बट ट्रेडिंग करते हैं हम, और ट्रेडिंग से जो पैसा होगा उसको वापस हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ यदि आप ट्रेड भी करते हो, 20% यदि कमाते हो, दैट मीन्स योर मनी विल बी डबल इन 3.5 years, राइट? सो स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट वे ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप उन कंपनीज को सेलेक्ट करो, इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक, आप उन कंपनीज को सेलेक्ट करो जहाँ पे CAGR ग्रोथ है, ऐसी कंपनी जहाँ पे 10 से 15% ईयरली रिटर्न मिल रहा है, उस कंपनीज पे फोकस करो, 5 से 10 साल इन्वेस्ट करो। सेकंड, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो, चाहे किसी भी कंपनी में कर रहे हो, चाहे आप SIP थ्रू कर रहे हो या म्यूचुअल फंड थ्रू कर रहे हो, एंड दिस इज हाउ इट विल हेल्प फॉर योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। Okay, Yeah. Udit. Thank you for the answer. Yeah, Advait ji, आपसे क्वेश्चन है related to hedging, because it is also a good strategy when it comes to investing on trading. So how one can use it? रोहन, पहले तो जो चंदन ने बताया पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत सही एक फिनोमिना है। I was just tweeting it the other day, I think this evening only, कि जो एक एग्जांपल दे रहे थे चंदन की, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप 15,000 रुपए 15 साल के लिए एट द रेट ऑफ 15% एनुअल रिटर्न आप इन्वेस्ट करते हैं, I'll repeat, 15,000 for 15 years, 15,000 every month for 15 years at 15% return, you are getting 1 crore wealth created. 1 करोड़ रुपए की आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। सिमिलरली आप अगर 15,000 रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं सेम 15% रिटर्न पे, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बिकॉज ये 15 से 30 साल हो गया है, दिस कम्स डाउन टू 10 करोड़ रुपीज ऑफ वेल्थ क्रिएटेड। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कि द लॉन्गर द ड्यूरेशन द मोर द रिटर्न्स। आप एग्जांपल लीजिए, लास्ट 10-12 साल के अगर एग्जांपल्स लेते हैं, यशराज ने अच्छा एग्जांपल लिया बजाज फाइनेंस का। आप देखिए स्टॉक्स लाइक TCS, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, इनफैक्ट ICICI बैंक भी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये सारे दिग्गज स्टॉक्स आज की जो प्राइस है इससे करीबन 6, 8 या 10 टाइम्स कम थे। इन्होंने लास्ट 10 साल में या तो 5 गुना या 7 गुना रिटर्न दिए हैं। Obviously, players like Bajaj Finance, you'll be surprised to know that आज से 12 साल पहले बजाज फाइनेंस was under 100 rupees in price. तो इस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग 10 से 12 से 15 साल का अगर आपका एक नजरिया हो, तो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू हैव सिलेक्टेड द राइट स्टॉक्स, दैट इज द की वर्ड हियर, राइट स्टॉक्स जो फंडामेंटली करेक्ट हैं। जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक 100 रुपए का होना चाहिए या 500 या 1000 का। लोग आजकल ऐसा कहते हैं कि भाई सब 3 डिजिट स्टॉक्स आर बेटर, क्योंकि एक 50 रुपए का स्टॉक 500 का हो सकता है। ये सही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए कि टाटा एलेक्सी एक 800 रुपए का स्टॉक 8,000 रुपए हो सकता है। रिलायंस जैसे एक स्टॉक जो आज से 4 साल 5 साल पहले सब द बोनस थिंग वाज अंडर 500 रुपीज,
तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाइज टू क्वालिटी स्टॉक्स. यू नीड टू वेरीफाई कि इनका क्वालिटी इंटैक्ट है कि नहीं. यू हैव टू कीप अवे फ्रॉम द लाइक्स ऑफ द DHFLs एंड द Syntex एंड द Yes Banks एंड द JP Associates. तो उस तरह के डॉजी प्लेयर्स को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बट इन द लॉन्ग रन क्वालिटी स्टॉक्स विल कंपाउंड. आपका सेकंड क्वेश्चन था रोहन अबाउट हेजिंग. कैन यू प्लीज elaborate which sort of a hedging thing you're talking about? Yeah, in general, hedging and its importance in investing and in trading. To be honest, रोहन, मैं because मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो के लिए मैं हेजिंग सिर्फ इस तरह से करता हूँ कि आई हैव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ माय पोर्टफोलियो इन गोल्ड एंड डेट. डेट में तो बहुत कम है, बट आई डू हैव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ माय पोर्टफोलियो इन गोल्ड. गोल्ड के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, आई डू इन्वेस्ट इन देम, बट या बहुत ही स्मॉल पोर्शन है मेरा वो. I am an aggressive investor, so unlike what Yashraj was discussing, age 100 minus the age, that is very correct. People should follow that principle. That's the right way. But with someone like me who has a higher risk profile, I am more aggressive on equities per se. तो मेरा hedging का ज़्यादा exposure, because I am an investor long term, I only hedge it through gold. Yeah. रोहन, मेरा एक क्वेश्चन है सर से कि हाउ टू मैनेज द रिस्क इन इन्वेस्टिंग एंड इमोशन एज वेल. गौरव, दैट्स अ गुड वन. देखिए गौरव, क्या होता है कि जो इन्वेस्टर का, कोई भी इन्वेस्टर है मार्केट में, उसके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. आपकी और मेरी सोच, आपकी और मेरी स्ट्रेटेजीज अलग हो सकती है, बिकॉज हमारी मार्केट की तरफ से एक्सपेक्टेशंस अलग हैं. Like say for example, the variables we can look at is आपकी और मेरी risk tolerance अलग हो सकती है. The amount of capital involved in equities or in any investment could be different. हमारा capital involvement के साथ साथ capital allocation अलग हो सकता है. आपका मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो और उसमें 10 स्टॉक्स हैं सिर्फ लाख रुपए के. मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो होगा, लेकिन मेरे 100 स्टॉक्स हैं उसमें, यू नो. तो मेरा एलोकेशन अलग हो सकता है. देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वेरिएबल जो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है मार्केट में इन्वेस्टेड रहने के लिए. इससे आपका रिस्क टॉलरेंस पता चलेगा. आपके पास 4, 6, 8, 10 साल हैं, तो यू नो यू कैन गो फॉर स्लाइटली रिस्कियर मिड कैप्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ लार्ज कैप. बट आपका टाइम फ्रेम कम है, अगर 2 साल का ही है, तो आपको वही TCS, वही HDFC बैंक, वही एशियन पेंट्स लेने पड़ेंगे, जो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कर रहे हैं. बिकॉज 1, 1.5, 2 साल में आपको अपना कैपिटल भी बचा के रखना है. एंड देन फाइनली वन मोर की क्राइटेरिया इज आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रेफरेंस है, वो आपका एक बहुत बड़ा वेरिएबल होता है. तो रिस्क के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन, कई लोग स्मॉल कैप, नैनो कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ना छोटा वैल्यू का स्टॉक हो. सम वुड प्रेफर ओनली निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक्स. तो ये सारे वेरिएबल्स देख के हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है. Yeah, that would be my reply to that. Okay, sir. यशराज जी, सेम क्वेश्चन मेरा गोज विथ यू आल्सो. एंड मैं जस्ट आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप कमोडिटी के एक्सपर्ट हो सर, तो यशराज जी कैसे इसको कमोडिटी में मैनेज करें रिस्क एज वेल एज अपना वेल्थ क्रिएशन भी कैसे देख पाए इसको? देखिए, एक स्ट्रैटेजी के साथ में रेजोनेट करता हूँ, दैट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग. ठीक है. अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग में यू एक्चुअली आर लुकिंग एट अ ट्रेंड and you are expecting it to continue. So let's say for an example, अगर मैं अभी बोलूं कि जैसे ITs जो हैं, they were in a downtrend. उन्होंने काफी महीने तक, मतलब लाइक 2-3 महीना, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस कि कितना बड़ा बेस था, बट उन्होंने पहले एक बेस बनाया एंड देन आफ्टर दैट दे रिज्यूम्ड देयर अपट्रेंड. सो जो उसका जो बड़ा टाइम फ्रेम, इफ यू विल बी लुकिंग एट मंथली और वीकली चार्ट्स, तो वहां पर अपट्रेंड था, बट इन डेली चार्ट्स देयर वाज अ डाउनट्रेंड एंड अ साइडवेज फॉर्मेशन हैपेंड देयर, एंड आफ्टर दैट द ब्रेकआउट हैपेंड अपसाइड. सो अब यहाँ पर ये इस टाइप का थीम, इस टाइप का इन्वेस्टिंग में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ रादर देन इन्वेस्टिंग फॉर 2 years 5 years. दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी. तो अब जैसे ये ट्रेंड जब तक है एंड मेरे पास में स्टॉक्स हैं लाइक नौकरी, लाइक इन्फोसिस,
अब इस टाइप जब तक आईटी इंडस्ट्रीज विल एक्चुअली बी इन एन अप ट्रेंड, आई विल कीप ऑन होल्डिंग माय स्टॉक्स इन दिस पर्टिकुलर थीम, और उसके बाद में मैं वहां से निकल जाऊंगा। तो अब इसमें रिस्क कैसे मैनेज करना है, दैट यू नीड टू लुक एट इट लाइक जस्ट लाइक यू आर ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेडिंग में आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट व्हाट इज योर रिस्क, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग ओवर योर कैपिटल, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आपका ध्यान रखना पड़ता है। एंड वंस द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज हिट, यू आर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो अब यहाँ पर मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है दैट यू डू नॉट नीड टू होल्ड अ स्टॉक इनडेफिनेटली। जहां पर आपको लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आप वहां पर निकल जाते हो। सो दैट्स व्हाई उस चीज का मेरा ये, मैं रिस्क को इस हिसाब से मैनेज करता हूँ दैट आई जस्ट लुक एट इट एज money is really, you need to actually control the risk, rest everything will be controlled by the market। आपके प्रॉफिट्स भी हो जाएंगे, आपका वेल्थ भी बन जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरा इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, दिस above that if the loss exceeds this it actually will bother my mindset, so that's why मैं वहां पर वो चीज समझ करके करता हूँ। ओके ग्रेट। चंदन जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिंग के जर्नी में हाउ टू डाइवर्सिफाइड आवर पोर्टफोलियो। राइट, सो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस सवाल के दो रिप्लाई है। एक तो आप इक्विटी ओरिएंटेड है तो इक्विटीज में भी डिफरेंट सेक्टर से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। यदि आप ओवरऑल असेट्स क्लास देखोगे तो डिफरेंट असेट्स क्लास को अलोकेशन दिया जा सकता है। जैसा कि हम सब मानते हैं और सारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर डिस्कस भी किया है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का सिंपल लाइफ में इन्वेस्टमेंट का, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का सिंपल रोल होता है 100 माइनस एज। मान लीजिए मेरी एज 35 इयर्स है तो मैं 65% रिस्की एसेट्स में डालूंगा, 35% लेस रिस्की एसेट्स में डालूंगा। रिस्की एसेट्स में इक्विटी मानी जाती है और लेस रिस्की एसेट्स में आपका एफडी समझ लो, गोल्ड समझ लो, बॉन्ड समझ लो, राइट। अब ओके सर, बट हम ऐसा मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में यदि जाए तो रिस्क नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट सेक्टर में अपना पैसा अलोकेट कर सकते हो। कि मैं पूरा पैसा बैंकिंग में नहीं डालूंगा, कुछ परसेंटेज, मान लीजिए मेरा टोटल 100 रुपीज है, 100 में से मैं 65% इक्विटी में डाल रहा हूँ। अब उस 65 जो एक तरह का 100% हो गया, उसको मुझे कहाँ अलोकेट करना है। मान लीजिए मैंने 25-30% बैंक्स में डाल दिया, बैंक्स में बैंकिंग शेयर्स, उसमें से चाहे आप प्राइवेट बैंक ले लिए, पीएसयू बैंक्स कर लिए, कैपिटल गुड्स में डाल दिया, फाइनेंशियल्स में डाल दिया, एक दो आईटी नेम ले लिया, ऑटो सेक्टर से एक दो स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। सो दिस इज हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई your portfolio. So you can either diversify with the different assets class, or if you are only being the equity oriented, then you can diversify by selecting the different sector. So you are reducing the company specific risk as a whole in the Indian markets. ओके सर, व्हाट अबाउट बॉन्ड्स? हमारे एक यूजर का हमारे एक लिसनर का क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट बॉन्ड्स, उनको कैसे डाइवर्सिफाइड करें हम? देखिए, मेरे हिसाब से बॉन्ड में ऐसा कोई डाइवर्सिफाई, क्योंकि बॉन्ड्स उन्हीं के लिए होता है जिनको रिस्क कम लेना है, राइट। और यदि आप बॉन्ड में इतना डाइवर्सिफाई को सोच लो, इससे अच्छा तो एफडी करवा लो, आपका पैसा 8 साल और 7 महीने में डबल होगा। और मैं बोल रहा हूँ जितने भी यहाँ पे लिसनर्स हैं उनको बोलें कि मेरे पास ऐसा एडवाइस है जो 8 साल और 7 महीने में डबल होगा। मेरे हिसाब से अभी जो जितने भी लिसनर से अटेंड कर रहे हैं वो सब चले जाएंगे, क्योंकि 10 साल 9 से 10 साल का पेशेंस नहीं है। यदि आपका इक्विटी में 20 से 25% का कंपाउंडिंग बनता है तो पैसा वहां पे लगभग 4 से 5 गुना हो जाएगा, इफ आई लुक एट द कंपाउंडिंग पार्ट। सो बॉन्ड में जो भी बॉन्ड है रिस्क फ्री रहते हैं। आपको एकदम रिस्क फ्री चाहिए तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी जो बॉन्ड रहते हैं वो ले लो, भारत बॉन्ड है वो ले लीजिए। और एकदम रिस्क फ्री जाना है तो आप एफडी, आप जो किसान विकास पत्र ये सब है, इन सब में चले जाइए। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो भी यहाँ पे ऑडियंस है, मेरा ऐसा मानना है सारे के सारे 50 से नीचे हैं, तो दे शुड आल्सो लुक एट द रिवॉर्ड पार्ट only, rather than only talking about how to reduce the risk, how to look at the hedging of the portfolio. I think next 10 years, see, 2 or 3 years back we have seen the COVID. Now is time not to consolidate, this is time to give the breakout to your wealth study. So I think one should focus and think about on that point of. ओके सर। यशराज जी, स्पेसिफिकली आपसे एक क्वेश्चन है, एक हमारे व्यूअर का, बैंक निफ्टी पे वो व्यू जानना चाहते हैं आपका।
सर आज ही मैंने ट्विटर पे एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे आई had posted the Bank Nifty's chart. Okay, and there was a similar formation which actually it did previously when there was a fall of 10.75%, and this time also Bank Nifty actually gets stabilized around 10.5% fall. So there is this pattern which occurred earlier also. Bank Nifty after the fall, Bank Nifty actually formed a bullish flag. यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, साथ ही साथ 8 and 21 EA में क्रॉसओवर होने वाला है और उन दोनों के बीच में मार्केट जो है वहां पर भी कंसोलिडेट किया था फॉर 5 to 6 सेशंस. यहाँ भी ऑलमोस्ट 5 से 7 सेशंस हो चुके हैं मार्केट को कंसोलिडेट करते हुए. सो अगर हम लोग देयर इज दिस टेनेट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस व्हिच एक्चुअली सजेस्ट्स that history tends to repeat itself, right? So अगर ये similarity को हम लोग यहाँ पर play out इसको अगर यहाँ पर हम लोग factor in करते हैं, then I'm expecting a huge breakout on the upside and probably हमने bottom बना लिया है, provided अब 8,21 का जो moving average EMA system है that must break out, that must give you a breakout and that will be a confirmation that we are moving up only. So मुझे ऐसा लगता है that we have already formed the bottom. And अब देखते हैं, let's say 41,000 is the stop loss of my longs. और इसके साथ मैं expect कर रहा हूँ that if market does not go below 41,000, if the closing does not happen below that, we are heading towards the lifetime high in Bank Nifty and Nifty as well. ओके तुषार जी, आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. रोहन, नाउ ओवर टू यू. अद्वैत जी, आपके लिए क्वेश्चन है मेरा रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट. बिकॉज हम इन्वेस्ट तो करते हैं, आपको भी पता है और सारे हमारे यूजर्स को भी पता है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. सो हाउ कैन वन मैनेज हिज और हर रिस्क व्हाइल इन्वेस्टिंग? गुड वन, ट्रिकी वन. मार्केट जब टर्बुलेंट होता है, जब मार्केट में उथल पुथल होती है, तो इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन हिलता है और तब एक क्लैरिटी आती है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है. अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन किया हुआ है विद ड्यू डिलिजेंस, आपने रिसर्च करी हुई है, आपको नॉलेज है उस इंडस्ट्री के बारे में या उस स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, आपने जैसे हमने इन्वेस्टर वेरिएबल्स डिस्कस करे, रिस्क टॉलरेंस, कैपिटल इन्वॉल्व्ड, एलोकेशन, ऑल दैट, उस हिसाब से आपने एक रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाया है आपका. इसके साथ साथ एक चीज आपको और इन्वेस्टर्स को ऐड करनी पड़ेगी कि द एक्ट ऑफ डिसिप्लिन. मार्केट की टर्बुलेंस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कुछ हद तक अनईजी कर सकती है, बट अगर आपका कन्विक्शन सही है, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है और आप ये मानते हैं कि आपने जो स्टोरी पिक करी है, आपने जो बिजनेस पिक करा है, वो एक वोलेटिलिटी फेज से निकलकर आगे जाके ठीक रहेगा. मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ. आजकल एशियन पेंट्स की बहुत बात चल रही है. एशियन पेंट्स कुछ 3200-3400 रुपए से 3400 से वापस अब 25-26-2700 पे आ गया है. एंड ट्विटर पे ही एक मेरे फ्रेंड ही हैं फ्रॉम नागपुर, उसने मुझे मैसेज किया कि अदित भाई ये एशियन पेंट्स का क्या हो रहा है, बिकॉज ही वाज एवरेजिंग एशियन पेंट्स अप. वो 2000 से एशियन पेंट्स को एवरेज अप करता जा रहा था 3000-3200 तक. एंड माय आंसर टू हिम वाज द सेम थिंग कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में हाउसिंग सेक्टर बूम कर रहा है? इंडिया में होम लोन्स बड़े जबरदस्त तरह से दिए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज, होटल्स, क्या इस जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है? एंड द आंसर इज यस. अगर इंडिया में इंफ्रा बूम है, हाउसिंग बूम है, तो इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर इन पेंट सेक्टर इज एशियन पेंट्स. तो वो एक टेम्पररी लल फेज से निकल रहा है, वो एक टेम्पररी इश्यू से निकल रहा है, जहां पे थोड़ी सी हेडविंड्स थी रॉ मटेरियल की प्राइसिंग पर, हाई प्राइसेस आ रही थी रॉ मटेरियल पे, प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इश्यूज थे. दैट इज व्हाई एशियन पेंट्स पिछले 15-18 महीने से एक 2500 से 3200 की रेंज में घूम रहा है. बट इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज इन इंडिया. कितने बड़े बड़े प्लेयर्स आके मार्केट से चले गए. इनफैक्ट दुनिया का दिग्गज प्लेयर शेरविन विलियम्स आज से करीब 8-10 साल पहले आया था इंडिया में, एंड दे कुड नॉट विथस्टैंड द माइट एंड द रीच एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एशियन पेंट्स.
तो इट जस्ट एग्जांपल कि आपका कन्विक्शन जो है, आप जैसे कहते हैं कि रिस्क है हर इन्वेस्टमेंट में, बट अगर आपने जो स्टॉक सिलेक्शन किया है उसमें आपका कन्विक्शन सही है एंड आप में डिसिप्लिन है उसको पकड़ के रखने की, अगर आप वीक हैंड हैं तो आप एशियन पेंट्स 2600 पे बेच देंगे। और एक स्ट्रॉन्ग हैंड, एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक, एक बढ़िया म्यूचुअल फंड उसको पकड़ के रखेगा और लॉन्ग रन में वही स्टॉक 2500 से 3500, 3500 से 5000 इन द पीरियड ऑफ 2, 3, 4, 5 years एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग देगा। इट्स अ परफेक्ट कॉफी कैन स्टॉक। एंड देन वन मोर एरिया ऑन रिस्क इज आपके गोल्स क्या हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके स्टॉक रिटर्न से। आजकल और लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, रोहन एंड गौरव एंड द पैनलिस्ट चंदन एंड यशराज, आजकल आप लोग भी मानते होंगे कि a lot of investors are looking at quick gains in the market, especially younger investors, you know, ये टीनेजर्स से लेके 25 साल तक के, कि भाई यू नो साल में पैसा 30% हो जाए, 3 साल में पैसा डबल हो जाए। इतना आसान नहीं है। आई थिंक चंदन और यशराज भी मार्केट में काफी टाइम से हैं। यू नो दैट क्विक मनी, ठीक है, एक बुल रन आता है। 2020 कोविड के मार्च के महीने में जब मार्केट बहुत ही गंदी तरह से टूटा था, और वहां से मार्केट ने देख लीजिए रन अप, करीब 18 महीने का रन अप था, मार्च से लेके दिवाली ऑफ 2021। आपने मिट्टी छुई है, वो भी सोना बन गया है। तो वो एक अनप्रेसिडेंटेड बुल रन था, सब कुछ चला था, एवरीथिंग एक एक फेज में चलता गया। आईटी चला, इंफ्रा चला, फार्मा चला, केमिकल्स चले, ना स्पेशलिटी केमिकल्स चले, एग्रो केमिकल्स चले, मेटल्स चले बाद में सिक्लिकल मेटल्स भी चले। तो एक चढ़ते मार्केट में, एक बुल मार्केट के फेज में एवरीथिंग लुक्स वेरी रोजी एंड पीपल थिंक कि भाई यही है मार्केट। काफी नए इन्वेस्टर्स 2020 में जब लॉकडाउन चल रहे थे तब मार्केट में एंटर हुए और उनको लगा यही है, चढ़ती हुई मार्केट में पैसे बन रहे हैं। बट आप ये नोटिस करिए कि 2021 की दिवाली, अक्टूबर 2021 से आज फरवरी 2023 हो गया है, क्लोज टू 17-18 मंथ्स, और मार्केट वही 54,000 से 62-63,000 की रेंज में है। वो 10,000 की रेंज में मार्केट पिछले 1.5 साल से चल रहा है, विच इज एन एग्जाम्पल वेयर कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स लीनियर नहीं होते हैं, एक ही ट्रेंड लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, बीच में लंपीनेस आती है, बीच में करेक्शंस आते हैं, बीच में कंसोलिडेशन आता है, और यहीं पर इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट और कन्विक्शन दोनों टेस्ट होता है। एंड दैट इज व्हाई वी से मार्केट इज ऑलवेज, वो कहते हैं ना, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, यू नो। आपको रैशनल रहना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म के गोल्स आपके अचीव कर पाएंगे। या रोहन एंड गौरव। Okay, sir. Yeah, Amanjit, if you have any question. हेलो। Yeah, Amanjit. हेलो। Yeah, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सर। एंड अरोरा सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू लाइक, ओके, हम जैसे अभी इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, एक लॉन्ग टर्म में, हाँ, हम लॉन्ग टर्म में एक प्लान करते हैं कि ओके, रन मिला हमें 3 to 4 years का एक रन मिलता है। हाउ टू प्लान एग्जिट एक्चुअली ऑन पर्टिकुलर, लाइक ओके, हम 5 to 6 years किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, हाई मारता है, देन अगर मूवमेंट होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें हाई, जो हाई मारा है हमें दोबारा वापस नहीं मिलता है। सो हाउ टू प्लान एग्जिट इन दिस पर्टिकुलर टर्म्स? गुड क्वेश्चन अमन। अमन, मैं अपनी पर्सनल फिलॉसफी बताऊंगा तो मैं किसी भी स्टॉक या किसी भी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट तब करता हूँ, एक रीजन तो पहला ही होता है, मुझे पैसे चाहिए। इफ आई नीड मनी फॉर समथिंग एल्स, मुझे एक हॉलिडे पे जाना है या मुझे कुछ और खरीदना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो आई वुड सेल अ स्टॉक। नौ मैं एक स्टॉक क्यों सेल करूंगा? अगर मेरा जो एक एक्सपेक्टेशन है स्टॉक से कि ये स्टॉक मुझे 12 to 14 to 16% CAGR ग्रोथ देना चाहिए इसको, और वो मुझे नहीं दे पा रहा है, तो उसके नीचे मैं डिग करूंगा कि क्या उसका रीजन है। क्या मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ है, क्या कोई सेक्टर की हेडविंड्स आ गई हैं, या कोई प्राइसिंग पावर इश्यू है, या सडनली एक मार्केट का ट्रेंड इस सेक्टर पे नेगेटिव हो गया है, कोई कंप्लायंस इश्यूज हैं, कोई एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। तो इन बहुत सारे रीजन से मैं उस स्टॉक को चेक करूंगा, और वो किसी भी रीजन में अगर वो
उतरता है, वो रीजन को अप्लाई होता है कि दैट इज एप्लीकेबल टू द स्टॉक, देन आई वुड सेल इट। आपको स्पेशलिटी केमिकल्स का एग्जांपल लीजिए। 2020 में जब कोविड आया था, तब अमाइंस और वेरियस अदर बेंजीन डेरिवेटिव्स, इनका पूरा एक बूम आया था, बिकॉज दे वर द रॉ मटेरियल सप्लायर टू अ लॉट ऑफ अदर फार्मा इंडस्ट्रीज and agrochemical industry and other subsidiary chemical stocks, subsequent chemical stocks. But एक ट्रेंड चलता है, सेमी सिक्लिकल स्टॉक होते हैं, ट्रेंड गोज अप एंड डाउन, दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक। आज की तारीख में डीवीज, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, मैंने बहुत साल पहले डीवीज लिया था। आप मुरली डीवीज की स्टोरी सुनिए, उनका विजन देखिए, इट्स एन एक्सीलेंट फार्मा स्टॉक। मगर लास्ट 2 क्वार्टर बहुत खराब रिजल्ट्स रहे। आई एम नॉट कंप्लीट, आई हैवंट कंप्लीटेड एग्जिटेड द स्टॉक। मेरा परचेज प्राइस बहुत पुराना है 2017 का, तो आई एम स्टिल सिटिंग ऑन प्रॉफिट्स। बट कोई नया इन्वेस्टर जिसने 3500-3600 पे डीवीज खरीदा है और आज डीवीज आई डोंट नो कितने पर है, 3000 से नीचे है शायद, उनके लिए एक कन्विक्शन हिल जाता है, बिकॉज वो एक सिक्लिकल ट्रेंड में अभी आया है। अगले 2 से 4 से 6 क्वार्टर उसके वीक रहेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने खुद कहा है। आई रिस्पेक्ट द क्लैरिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मिस्टर मुरली देवी, जो इतने उससे कह सकते हैं कि हमारे 2-3 क्वार्टर टफ होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको खुद एक कॉल लेना है, यू हैव टू लुक एट मैनेजमेंट कमेंट्री कि क्या ये मेरा स्टॉक एक अपॉर्चुनिटी लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है हो रहा है, इट वुड बी अ सेल। क्या ये स्टॉक या ये सेक्टर एक हेडविंड में नहीं जा रहा है? अगर जा रहा है तो इट्स अ सेल इन द स्टॉक। क्या मेरे स्टॉक के फंडामेंटल्स डिटीरियरेट हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो इट्स अ सेल। क्या मेरे प्रमोटर्स की एक्टिविटीज अनएथिकल हैं? फॉर एग्जांपल, एक बीसीजी ग्रुप करके कंपनी है, ब्राइटकॉम करके, क्या ये सट्टा वाला स्टॉक है? यस है, दिखता है। अगर ये सारे पैरामीटर्स, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, हेडविंड्स, सेक्टर इश्यूज, ग्रोथ इश्यूज इन अ कंपनी जो उसको फंडामेंटली वीक कर रही हैं, अगर कोई भी ऐसा पैरामीटर ट्रिगर होता है जिसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, एंड अगर ऐसा होता है तो इट्स अ क्लियर कट सेल ऑन अ स्टॉक। या डेफिनेटली आई थिंक लाइक काफी अच्छा एक पिक्चर आपने यहाँ पे डाला है। एंड चंद्र सर, मेरा एक सवाल ये है आपसे अद्वैत सर, whether you keep any price trigger for exiting or just fundamental reasons? नहीं, मैं कोई प्राइस ट्रिगर नहीं रखता हूँ। मैं थोड़ा सा बोरिंग इन्वेस्टर बोल सकते हो आप। मैं अगर मैंने कोई स्टॉक लिया है, तो जब तक वो कहते हैं ना, नेवर व्हेन यू राइडिंग अ हॉर्स, चढ़ते घोड़े को लगाम नहीं लगानी है, उसको ज्यादा तंग नहीं करना है। आई वुड राइड माई विनर्स एंड कट माई लूजर्स। मेरे ऐसे भी स्टॉक्स हैं 2004-2005 से जो मैंने आज तक नहीं बेचे हैं। TCS is an example, ICICI Bank is an example. But having said that, मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है। टारगेट का ऐसा है कि यस, कई बार स्टॉक्स एक लेवल पे पहुंच जाता है जब वो एक्सपेंसिव लगता है। I'll give you an example. मुझे मारुति आज से 5 साल पहले, शायद 2018 में मारुति, मैंने एक मानेसर प्लांट में एक प्रॉब्लम हुई थी, तब मारुति लिया था 1300-1400 रुपए पे। एंड 2018 में मारुति टच 9500, 9600, उसका शायद ऑल टाइम हाई 10,000 के आसपास है। मुझे 9500 पे मारुति ओवर प्राइस लगा, और मुझे उसी टाइम पर महिंद्रा एंड महिंद्रा अंडर प्राइस लग रहा था। So I thought to myself कि मैं सेक्टर सेम रखूंगा, बट मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्विच कर जाऊंगा, बिकॉज आई लाइक द रूलर स्टोरी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनका जो ट्रैक्टर्स का काम है बहुत बढ़िया है। सो दैट इज वेयर आई नॉट अ टारगेट इन माइंड, बट आई फेल्ट कि मुझे उस पर वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही है। मारुति पे 9400-500 था तब, एंड आई स्विच्ड ऑल दैट मनी। इट वाज अ 6 bagger for me. 6.5 bagger for me. I moved everything into Mahindra and Mahindra. Apparently Mahindra and Mahindra ने कुछ नहीं किया 2-3 साल तक, but अब चल रहा है 2-3 साल से, कोविड के बाद से। तो yes, to cut the whole thing short is, if you feel a stock is looking really expensive at certain valuation, I might look into it in a deeper way to see कि क्या मैं इससे निकल के
क्या ये अंडर परफॉर्म कर सकता है आगे? यस, इन हाइंडसाइट इफ यू सी, मारुति 9500 तक आज तक नहीं आया है, शायद उसके आसपास पहुंच गया होगा, बट लास्ट 5 साल से नहीं आया है. तो yes, that would be my answer to your query. Thank you. चंदन जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रॉम आवर यूजर व्यूअर्स. What is secret of magic number? Can you explain it? Secret of magic number. Can you explain please? देखिए, लाइफ में मैजिक कुछ नहीं होता, लॉजिक ही होता है, और लॉजिक को पूरी शिद्दत से करोगे तो वो मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है. मैं रोहन जी आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सुबह आज मैंने ट्वीट किया था कि बैंक निफ्टी 41,444 नहीं तोड़ेगा, वहीं से घूमेगा. आज का सुबह का बैंक निफ्टी का स्पोर्ट है 41,455. उसके बाद में वापस 2 बजे उसी लेवल पे आया 41,455 और 300 पॉइंट की रैली हो गया. सो दीज आर द प्राइस जंक्चर, एंड व्हाट आई डू, I follow the cocktail of technical and derivatives, and I mix the numerology as I follow that. Like, I'll just give an example, 17,777. So all these are the number based on some theory. These are not the random. If you look at only technical, it might be the retracement number. If you look at the game theory, these are some of the gain numbers. So I combine the time cycle, gain, retracement, cluster of support and resistance, VWAP area. So by combining also, like yesterday, the volume weighted average for Nifty in the last expiry was 17,777, and I was just looking a small move above the same to drive the rally of 300 to 400 points, because volume weighted average works. So I combine small logic from couple of things, and that works like a uh, better risk reward ratio, and that is the reason that people might call them as a magic number. So these are only technical derivatives and the numerology number, and I think once you learn and practice on it, even if you can follow us, so you will understand this. So like 41,444 was the example which I gave in the morning, and the premium option has gone double and the market itself moved up. Similarly, I'm continuously talking about 18,181 in the Nifty. So I'm eagerly looking to hit that number. And earlier, target for Nifty was 18,881, and exactly it made high near to 18,886. So all these numbers are based on the certain studies which I shared right now. Thank you. Okay, sir. Thank you. One more question. There are a lot of stocks you can earn through dividends that many stocks offer. So, is strategy you can use if they want to have less risk and need consistent income? देखिए, इट डिपेंड्स. याद रखें, रिस्क और रिवॉर्ड साथ में चलते हैं. जितना कम रिस्क लोगे उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा, राइट. साथ में जरूरी भी नहीं है कि हाई रिस्क ले लो तो रिवॉर्ड भी हाई मिले, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत कम रिस्क लो तो बहुत ज्यादा रिटर्न बन जाए. और एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर हमेशा लाइफ में ये चाहता है कि अल्फा जनरेट करे, उनका शार्प रेशियो बेटर हो, कम रिस्क में रिटर्न मिले. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? यदि आप ट्रेडर हो, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ क्रिएशन, बट मैं एक ट्रेडर के लिए कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ. यदि आप ट्रेडर हो, आपके पास में ट्रेडिंग का रूल होना चाहिए. यदि आप रेंडमली ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा. यू शुड बी हैविंग सम रूल. लाइक रूल व्हाट? लेट्स से whenever I see bullish engulfing in lower time frame, I'll buy the market. Or let's say, for an example, whenever I see 13 days moving average crossing above 35 day, I'll go with the buying of that particular share. So you can plan anything, whether you can plan with some option strategy, but if you have rule and if you are a trader, then only this market is going to reward you. If you are only randomly looking the market, suggesting and accepting the suggestion of someone to buy or sell, that might not help you to make money in the market. Now when I talk about slightly long term view, with the aim that how can I take less risk and to get more return, you can focus on dividend paying company, but always remember, dividend paying company are mostly the government companies. And however, in the last year we have seen good recovery, good momentum in the PSU bank, but most of these companies are slightly slow mover as well.
So what I suggest, you can mix few dividend paying company in your portfolio and can do some call writing activity, because someone asked this call writing concept in one tweet 5 minutes back, and I'm sure the question also belongs to the same. So I suggest you should mix few dividend paying company in your portfolio, and you can apply the call writing, that is called the covered call strategy, if you are good in options trading or if you understand the option trading. Otherwise, you should mix your portfolio with high beta and low beta name in the market. Thank you, sir. Yeah. Yeah. One question from our how to find out good equity stocks for investment of 8 to 10 years? Advait ji, you can answer the question. Yes, Chandan ji. Anyone can. वैसे जस्ट द प्रीवियस टॉपिक चंदन ने बहुत अच्छी चीज बोली कि डिविडेंड के लिए जब आप भाग रहे हैं तो अ लॉट ऑफ आप एक स्क्रीनर मारिए कि 6 to 8% का डिविडेंड यील्ड कौन कौन सी कंपनीज देती हैं. यू विल रियलाइज 90-80-90% ये कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज होंगी. द IOCLs, द सेल, नाल्को, कोल इंडिया, ONGC, गेल, ऑयल इंडिया, यू कैन नेम देम. हाँ, उसमें कोई नए नाम आएंगे आपको दिखेंगे कि ये अपना अनिल अग्रवाल ग्रुप की वेदांता दिख जाएगी आपको, या पॉलीप्लेक्स दिख जाएगा, या बैंको प्रोडक्ट्स दिखेगा, ओरेकल दिखेगा. लेकिन ज्यादातर कंपनीज गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनीज होंगी, गवर्नमेंट PSUs होंगे. तो डिविडेंड यील्ड के लिए वो कंपनीज सही हैं, लेकिन क्या वो कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती हैं? एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपके व्यूअर्स कर सकते हैं. आप कोल इंडिया की IPO, ये मैंने एक ट्वीट किया था 2-1 साल पहले, आज फिर से ट्वीट कर सकता हूँ ये सेम चीज, कि कोल इंडिया का आप जिस दिन कोल इंडिया लिस्ट हुआ था वहां से आज तक का जो प्राइस उसका हुआ है उसको चेक करिए, और उसने इतने साल जो डिविडेंड दिया है, कभी 30 रुपए, कभी 50 रुपए, वॉट एवर, आई थिंक 6-7% की यील्ड है कोल इंडिया की, उसको चेक करिए. यू विल रियलाइज कि आपके नेट ऑफ नेट गेन्स इज 0. योर नेट ऑफ नेट गेन्स मतलब अगर स्टॉक 500 पे लिस्ट हुआ था, एग्जांपल ले रहे हैं, और आज अगर स्टॉक 300 पे है, तो आपने अगर 200 रुपए डिविडेंड लिया है तो आपका 200 रुपए स्टॉक का प्राइस भी टूट गया है पिछले 8-10 साल में. तो अ लॉट ऑफ PSU कंपनीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कंपनी डिविडेंड देती है उसका स्टॉक प्राइस उतने ही प्रोपोर्शनेटली गिरता है. ये अ लॉट ऑफ यूजर्स डोंट अंडरस्टैंड दिस. एंड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डिविडेंड इज टैक्सेबल. 1 लाख के ऊपर का डिविडेंड टैक्सेबल है. दैट वाज द कनेक्शन विद जो चंदन बोल रहे थे. नेक्स्ट आपने क्या पूछा मुझसे? Yes, how to find good stocks for investing of 8 to 10 years? 8 to 10 years एक बड़ा होराइजन है. I would stick to large caps and big mid caps. ये एक ambiguous question है, मगर if there is a sector which जहां पे आपको समझ में आता है कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं होने वाला है, ऐसे कुछ सेक्टर्स आप लेके चलिए. ऑल्सो वो सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा. ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. आज आप फर्टिलाइजर स्टॉक, शुगर स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स, मीडिया स्टॉक्स, इस पे डिस्कस करते हैं. इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है और होता आया है इन द पास्ट. लेकिन आज आप IT स्टॉक्स, कुछ हद तक बैंक स्टॉक्स, कुछ हद तक ऑटो स्टॉक्स, इन पे फोकस करते हैं. तो इट इज वेरी जेनेरिक फ्रेम. तो आई वुड मैं यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए PSU सेक्टर से दूर रहता हूँ. मैंने शायद ही किसी SBI को छोड़ के, और आई थिंक 1-2 और कंपनीज, कंटेनर कॉर्पोरेशन और SBI को छोड़ के, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी किसी PSU स्टॉक को बाय नहीं किया है. एंड मैंने कभी कोई अच्छी वेल्थ क्रिएशन देखी भी नहीं है इन स्टॉक्स में. यस, डिफेंस स्टॉक्स अब चल रहे हैं, भारत डायनेमिक्स हो गया, HAL हो गया, ये सब अभी बहुत अच्छा चल रहे हैं. लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने लास्ट 7-8 साल में क्या रिटर्न दिए हैं. 4-5 साल कुछ नहीं, और अब ये भागे हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आई वुड प्रेफर द बेस्ट बैंक. मे बी आप टॉप 2-3 ले लीजिए.
पब्लिक सेक्टर में SBI, प्राइवेट सेक्टर में ICICI, HDFC, the best IT companies, the Infosys and the TCS, the best paint company Asian Paints, the best four-wheeler company में आप मारुति को डालिए या आप महिंद्रा एंड महिंद्रा डालिए, टाटा मोटर्स लीजिए, you know, in adhesives you can go Pidilite, in tires you can go MRF or Apollo. तो ऐसे करके आप अपनी फील्ड का जो दिग्गज प्लेयर है उस पे फोकस करिए. आज a lot of people focus on smaller nano caps, मतलब 1000-1500 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनीज पे फोकस करते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि जो लार्ज कैप है वो किसी पेडिग्री की वजह से लार्ज कैप बना है. आज अगर एशियन पेंट इतना बड़ा प्लेयर बना है या एस्ट्रल पॉली इतना बड़ा प्लेयर बना है या टाइटन इतना बड़ा बना है, वो अपनी पेडिग्री, अपनी क्षमता की वजह से इतने अच्छे बने आगे जाके. And in future also they will continue to outperform or at least perform in sync with the market. इसीलिए लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर की आपकी अगर इच्छा हो तो पहले आप कंपाउंडिंग पे ध्यान दीजिए, मल्टीबैगर्स अपने आप बन जाएंगे. रिलायंस आज की तारीख में भी एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, क्योंकि रिलायंस शायद अगले 10 सालों में अगर वो स्प्लिट करते हैं अपनी कंपनी को 3 भाग में, maybe it could be valued at 3 times from where it is now. So it doesn't matter what your stock is doing right now, but उसका futuristic scope क्या है वो देखना जरूरी है. And I think उसी तरह से आप long term wealth creation में एक proactive part ले सकते हैं. Yeah. Okay, thank you sir. Before going to next question, मैं ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. अगर आपको हमारे एक्सपर्ट से कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में बोल सकते हैं या फिर स्पीकर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. वी विल एक्सेप्ट इट सो दैट यू कैन आंसर आस्क योर क्वेश्चन. यशरा जी, आपके लिए क्वेश्चन है. हमारे यूजर्स का क्वेश्चन है, इज देयर एनी यू कैन यू टेल मी एनी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर स्टॉक्स एंड F&O? हाँ जी, F&O की एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है. 2 स्ट्रैटेजी बताता हूँ, एक नहीं 2 बताता हूँ. पहला स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज EMA 8 और 21 का क्रॉसओवर. अब प्रॉब्लम ये है, लोग बोलते हैं कि साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करता है. ठीक है, साइडवेज मार्केट में हर स्ट्रैटेजी का कोई ना कोई लिमिटेशंस होता है. आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, यूजुअली मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ही बताता हूँ. तो कोई भी आप स्ट्रैटेजी ले लीजिए, उसका कोई ना कोई लिमिटेशन किसी ना किसी टाइप के मार्केट में वो काम नहीं करेगा. तो यूजुअली आपको करना क्या है, जब भी आप 15 मिनट्स पे आप इसको लगा लीजिए, डेली चार्ट पे लगा लीजिए. जब भी कोई ट्रेंड बनेगा तो 8 और 21 का जो मूविंग एवरेज सिस्टम है, जब भी 8 मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है तो यूजुअली वहां पे हम लोग ट्रेंड को नया ट्रेंड जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं. इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा कैच ये है कि अगर आप एक बेस फॉर्मेशन, मतलब एक रेक्टेंगल पैटर्न, प्राइस पैटर्न रेक्टेंगल, जिसमें कि मार्केट 2 रेंज के बीच में, जैसे 41,100 से लेकर के 41,700 के बीच में बैंक निफ्टी जो है चल रहा था, वहां पे ये स्ट्रैटेजी अगर आप 15 मिनट में या 5 मिनट में यूज करते, वहां पे डेफिनेटली आपको एक पुल बैक भी कैच कर सकते थे. और वहां पे उस ट्रेंड को राइड करने के लिए आपके पास में अब एक टूल है कि जब तक 8 मूविंग एवरेज 21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको उस लॉन्ग ट्रेड के अंदर बने रहना है. राइट, एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसको इनफ टाइम या इनफ ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं जस्ट टू सी वेदर द स्ट्रैटेजी इज गिविंग यू प्रॉफिट्स और नॉट, देन यू नीड टू एटलीस्ट ट्रेड दिस पैटर्न फॉर 6 मंथ्स. बिकॉज बीच में कितने ही मैंने इसको बैकटेस्ट किया है. आई हैव बैकटेस्टेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. मैंने डॉन्चिन चैनल स्ट्रैटेजी को बैकटेस्ट किया है. बट जो 8 और 21 मूविंग एवरेज का जो सिस्टम है, इट एक्चुअली वर्क्स लाइक अ मैजिक. बस इसको आपको इनफ नंबर ऑफ टाइम्स जो है इसको आपको एग्जीक्यूट करना है विदाउट इवन लुकिंग एट द रिजल्ट्स. यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसेस. और दूसरा स्ट्रैटेजी है पाइवट लेवल्स. ओके, पाइवट लेवल्स क्या होते हैं? लेट्स से मार्केट ने 915 से लेकर के 930 में 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स मार्केट की बनी, मान लो 9:20, 9:25 और 9:30 तक. ठीक है, अब 3 कैंडल्स में मार्केट में जो बीच वाला जो 9:30 का कैंडल था उसका हाई और प्रीवियस 2 कैंडल का जो हाई है, ये थर्ड वाला जो कैंडल है ये हाईएस्ट हाई है. एंड उसके बाद 9:30 से 9:35, 9:35 से 9:40, ये अगली जो 2 कैंडल्स हैं उनका जो हाई है वो भी इससे नीचे है. सो दिस इज कॉल्ड अ पाइवट हाई. राइट, आप इसको विलियम्स फ्रैक्टल एक इंडिकेटर होता है, यू जस्ट लुक एट दैट
एंड यू विल गेट द आइडिया कि पाइवट हाई पाइवट लो क्या होता है, राइट? सो इसमें आपको जो है 15 मिनट पे यू नीड टू स्ट्रैटेजी, आप यू नीड टू एग्जीक्यूट दी स्ट्रैटेजी कि 15 मिनट के ऊपर जब भी कोई पाइवट हाई आपका क्रॉस होता है यू नीड टू बाय, एंड आपको स्टॉप लॉस लगाना है रिसेंट पाइवट लो पे, एंड यू नीड टू कैरी दैट ट्रेड अंटिल दी स्टॉप लॉस हिट्स। अब स्टॉप लॉस इसमें एक्चुअली इट्स अ स्टॉप एंड रिवर्सल सिस्टम, कि अब जो है आपका जो लॉन्ग ट्रेड होगा इट विल एक्चुअली बी एग्जीक्यूटेड इन अ शॉर्ट ट्रेड, सो the long trade will be exited and you will actually इस particular system के अंदर you will always have a position, ठीक है? तो आप उसके अंदर जो है ऑप्शन बाइंग का कोई भी सिस्टम बना सकते हैं, मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन बाइंग नीड्स मोमेंटम टू विन, राइट? सो इसके अंदर आपका विन रेट मे बी अ बिट लो, बट इसके अंदर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपकी बहुत फेवर में होगा. So these are two strategies. There are a lot other strategies also, winning strategies which I myself work upon. But ये दो बहुत ही simplest strategies हैं जो कि आप use कर सकते हैं. थैंक यू यशराज जी. चंदन जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे. We can do SIP in stock market. So any strategies for SIPs or any stocks ideas which we can follow for doing SIPs? Okay, so I think this is not last. This is not last but an important questions. So दो तीन तरीके हैं. पहले, यदि आपको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी इंडेक्स फंड की SIP ले लीजिए, जैसा कि HDFC इंडेक्स ग्रोथ फंड है या दूसरा कोई भी है. सेकंड, आपको मार्केट समझ में आता है और आपको समझ में आ रहा है कि एग्जांपल के लिए कि इंडिया का जो बजट था वो कैपेक्स पे फोकस है, कैपिटल गुड्स इंफ्रा पे फोकस रहेगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया की ग्रोथ है तो बैंकिंग चलेगी, तो आप ऐसा करके 5 से 8 स्टॉक्स का एक बास्केट बना सकते हो और हर महीने उन स्टॉक्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो. हालांकि डिस्क्लेमर रहेगा, ये जो भी नाम मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ. यदि गिवन ए चॉइस मुझे एक डमी पोर्टफोलियो बनाना है विद डिस्क्लेमर, तो मैं एक प्राइवेट बैंक ले लूंगा. मान लीजिए मैंने प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक या एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लिया. एक PSU बैंक ले लूंगा जैसा कि SBI में ले लूंगा. उसके अलावा मेरे को एक ऑटो काउंटर लेना पड़ेगा, M&M या TVS मोटर में से एक सेलेक्ट किया जा सकता है. कैपिटल गुड्स में सीमेंस को जैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, या फिर आपको IT में देखना है, देन IT में आप परसिस्टेंस या फिर एक्सेल टेक महिंद्रा को फोकस कर सकते हो. तो इस तरह से आप 5 से 8 स्टॉक्स का एक बास्केट बना के हर महीने वहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है. तो ये मैंने जस्ट डिस्क्लेमर के साथ में एक डमी पोर्टफोलियो कंपनीज के नाम बताए जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो. यदि आपको इनमें नहीं समझ में आता है तो डायरेक्टली आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हो, या फिर जो भी सेलेक्टिव ग्रोथ या मिड कैप फंड्स है जहाँ पर रिस्क ज्यादा है बट रिवॉर्ड भी ज्यादा होने के चांसेस है, वहां पे फोकस किया जा सकता है. दिस इज हाउ you can go with SIP, and always remember, higher the amount and bigger the time, more the power of compounding and the blessing of Lakshmiji will work for you. So that's all from my side, and wish everyone a healthy, wealthy uh, time ahead. Thank you, sir. I think one your Cyrus ji has a question. Yes, Cyrus ji, you can ask your question. My question is, I agree with what was being said earlier, that you should pick the best caliber companies in each industry, assuming, of course, that the sales growth is there, EPS growth is there, return on capital employed is high. But I would prefer to pick medium or small caps simply because they have a big runway ahead of them. If you pick something like TCS, which has already got a massive market cap, for them to make a 10 bagger or a 6 bagger or a 15 bagger is virtually impossible unless you're prepared to hold it for 20 years or something like that. So, my point is that all other things which I had mentioned earlier being in place, I would rather go for a small cap which has a long runway, say cap of between 6,000 to 20,000 crores. It's easy to go from, I mean, not easy, but it's more probable that you can go from 20,000 crores to
2 lakh crores in the space of say 8 or 9 years than to go from 2 lakh crores to 20 lakh crores or from 10 lakh crores to 100 lakh crores. That is my only point. Thank you. Thank you, sir, for your input. Yeah, we can go to close out for now. Chandrandi, any last before we close out? So, this today's topic is more about the wealth creation. So, I don't want to put anything related to the trading and options and expiry. All, however, I believe जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, नेवर बी द फोर्सफुल इन्वेस्टर, बी द जेन्युइन इन्वेस्टर. फोर्सफुल इन्वेस्टर का मतलब है 100 रुपए में लिया कोई स्टॉक, 101 में निकलना चाहते थे बट वो 101 नहीं गया, फिर 95 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 85 हो गया, फिर 75 हो गया, एंड देन रियलाइज कि नहीं, ऑल इज वेल, कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए रख लूंगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, वेल्थ क्रिएशन करना है, नेवर मिक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग in between, and always be the genuine investor, don't be the forceful investor. Second, never put all your money in one company or one sector. Always try to diversify, continue to be with winning game, try to avoid the losing one. I always follow the rule of relative strength. जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहीं रहे, जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे वीकनेस है, वहाँ से निकलते जाइए. I think these are the couple of things you can follow if you have to generate the alpha to enjoy the return in the supreme market. And I think if you follow some discipline with some skill set and some rule book, this market will help you to create huge wealth for you in the decade, for your generation as well. Thank you. Thank you, sir. Yeah, Advait sir, any last remark before we close out? Rohan, Gaurav, I would like to address Cyrus ने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा. Very rightly mentioned कि small cap में हम focus करें because they could be the future mid and large cap. Well, just a small correction there, Cyrus. 6 to 20,000 crore की market cap company would be more of a mid cap. So 2 to 5,000 crore is a small cap, 5,000 to 20,000 crore is a mid cap, and 20,000 crore plus is a large cap. And now आपने जो बताया ना mid cap, the possibility of a mid cap becoming a large cap is very very high. उसके पास एक growth track है. As you mentioned, TCS अगले 5 साल में 3 गुना नहीं हो सकता. I agree. You know, मगर एक smaller IT company, एक निश मार्केट की आईटी कंपनी जो 20% CAGR ग्रोथ दे रही है, वो शायद 5 से 6 साल में डबल हो सकती है. देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स. आप अगर देखिए हाई ग्रोथ कंपनीज, ऐसी कौन सी कंपनीज है मिड कैप कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट 18 to 25% CAGR ग्रोथ. मिड एंड स्मॉल कैप में आप देखेंगे, आप अगर QSR में देखते हैं तो बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ट्रेडिंग में रेडिंगटन है आपके पास. इनफैक्ट शू रिटेल या फुटवेयर ब्रांड में आपके पास मेट्रो ब्रांड्स हैं. हाउसिंग फाइनेंस में आपके पास एप्टस है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, आवास है. In hospitals you got Narayan Hrudayalaya, you got healthcare. You got FMCG bottling plant of Pepsi, you got Varun Beverages. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो 18 to 25% पे ग्रो कर रही हैं. मेनली मिड कैप्स हैं ये. एंड इफ दे कीप ग्रोइंग, सी दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइरस. If they keep growing at the same rate that they have shown in the last 1 or 2 years, they are definitely gonna get re-rated. उनका PE re-rating होगी, plus उनके पास institutional buyers आएंगे, and it will come in the spotlight. और जैसे जैसे strong investors enter करेंगे, that stock will become even more expensive. So in the long run, yes, large caps is for consistent compounding. But having said that, there is nothing that suggests कि TCS 5 साल में डबल नहीं हो सकता है. Reliance 5 साल में डबल हो सकता है, yes हो सकता है. Titan भी 5 साल में डबल हो सकता है, yes हो सकता है. महिंद्रा एंड महिंद्रा 5 साल में डबल हो सकता है, yes हो सकता है. तो पोटेंशियल लार्ज कैप में भी है,
लेकिन वो 5 या 6 या 7 साल में 4 गुना 6 गुना नहीं होंगे, वो डबल हो जाएंगे। और जो मिड कैप्स हैं वो शायद हमको 5 से 7 साल में ट्रिपल तक का चांस देंगे इफ दे आर द राइट मिड कैप्स। So that would be my answer to Cyrus. Yeah, thank you, sir. Now, for closing, any last remark? Well, thanks for the opportunity, Rohan and Gaurav. I appreciate that. And panelist Chandan and Yashraj, it was nice interacting with you guys. It was enlightening to get your views on markets. Thank you very much. I appreciate it. Thanks. Thank you, sir. Yeah, Yashraj ji, any last remark before we close out? I thank you for the opportunity. सारा कुछ चंदन सर ने और अद्वैत सर ने कवर कर ही दिया है. But one thing I would like to mention here is that keep on learning. Like this is something which you need to, you must do this, right? कि सीखते जाइए और बुक्स पढ़ते जाइए और साइकोलॉजी अपने बिहेवियर को समझ करके चीज़ों को सीखते जाइए, करते जाइए. Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you, Chandan ji. Thank you, Yashraj ji. It's great talking with you for this topic. We can now close out. And guys, before we go out, if you have any question to our speakers and our experts, you can ask them directly, or do one thing, you can follow our channel, Invest with Tribe. We do spaces every Wednesday on Saturday where you can talk with our experts. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Have a great time. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night.